It's live on Facebook. Let's go. Yeah, I think we are live on Facebook. Just a second. All right, so let's start. Good evening, everyone. Hope you all are doing well and safe, and welcome to this webinar. I'm Akansha Sahai, Project Manager at Rehab Path India office. We are a Madison-based startup with the mission to help patients and families struggling with addiction and mental health by connecting them to the right rehabilitation center. And currently in India, we are working with around 1,800 rehabilitation centers. So in today's webinar, we will be discussing therapeutic community, a unique treatment model for addiction with Dr. Bharat Bhushan from Muskan Foundation and Rajnandani Rathod, who is a psychologist and is also a part of our team, Rehab Path. So she'll be driving the rest of the conversation for today's webinar. This will be a 1-hour session, so please feel free to drop your questions on our Zoom channel and on our Facebook page, and we will be taking them at the end of the session. Thank you so much. Over to you, Rajnandani. Thank you, Akansha. And once again, I welcome you, Dr. Bhushan, and our audience. So before we get into the topic, could you tell our audience a little bit about yourself? Yes, Dr. Bhushan. आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पर चलेंगे. Good evening, Akanksha and Rajnandani, and then another team member who is facilitating the session. I am Dr. Bharat Bhushan. I am founder, General Secretary of Muskan Foundation. And basically, I am homeopathic physician having 30-year experience extensively working in the field of substance use disorder. Its prevention, its treatment, its rehabilitation, and its training. I am a regional vice president of an national organization by the name of FINGODEP, Federation of Indian Non-Government Organization on Drug Abuse Prevention. And I am looking into North chapter of this organization. Then I am chairman of All India Community of Person in Recovery Federation, AICPIR Federation. It was specially formed 2 years back for the persons who are in recovery for all over India. Then I have been specially trained for alcohol and drug abuse from All India Institute of Medical Sciences, a premium hospital of Government of India, New Delhi, way back in 1995. I am Indian National Trainer on Drug Abuse Prevention, Treatment and Rehabilitation for Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment. Then I have been internationally trained for International Certified Addiction Professional, ICAP 1 from the Colombo Plan and Intergovernment Agencies based in Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka. Then I am member of Federation Against Drug Abuse. Like that, I am also member of ISUP, International ISUP Society of Substance Abuse Prevention and Treatment Professional based in London. Then member of Vienna NGO Committee on Drug Abuse, member of Federation of Therapeutic Community in the Asian region. So with these, I am guest faculty with different organizations to train people for substance abuse prevention, treatment and rehabilitation. Thank you. That was a very vast profile, Dr. Bhushan. And I'm very excited to have this conversation with you, knowing your background now. So you spoke about Muskan Foundation, as you can also see in the background. Could you tell us a little bit more about it? Yeah, it's a non-government organization started in 2003 with the help of professional people as well as people who are in recovery. So it's a
state-based NGO based in New Delhi, but slowly we will by the near future we are going to be established it as a national chapter. We have started this NGO looking into the huge amount of huge number of people who take drugs, but government of India has less facilities as compared to the problem prevail. We started prevention work by doing awareness generation program in the community, in the school, in the college. Then we went across India with the help of other NGO and did various awareness program for the prevention of drug abuse. Then we started this rehabilitation center. Initially, we run it by our own pocket. Then it was recognized and granted by the Ministry of Social Justice, Government of India. Ministry of Social Government of India is the only ministry in India which supports drug abuse prevention treatment all over the India. हिंदुस्तान में दूसरा कोई मंत्रालय नहीं है जो नशा मुक्ति के लिए काम के लिए ग्रांट दे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे. जी. ओके, तो आई होप कि जिस तरह अभी मुस्कान फाउंडेशन आगे बढ़ा है उसी तरह और रिकग्निशन मिले और भी सिटीज में आप लोग काम कर पाए. सॉरी, उसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरका के नाम से जानी जाती है, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट, ये 15 बेड का है, फिर 30 बेड का है, फिर 50 बेड का है. तो प्रेजेंटली वी आर गेटिंग ग्रांट फॉर 15 बेड, 15 बेड के लिए हमें ग्रांट मिलती है. देन 2 year back we also applied for 2 community based project supported by this ministry. One is outreach and drop in center, वो भी दिल्ली में शुरू किया है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, साउथ वेस्ट में दिल्ली. और दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन, वो भी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू किया है. ये दोनों कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं. ये पूरे हिंदुस्तान में करीब जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो करीब 400 एनजीओ को है पूरे हिंदुस्तान में, और जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है ODIC एंड CPLI वो करीब 400 और एनजीओ को. तो कुल मिला के 800 एनजीओ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली सपोर्ट करती है. ओके, तो जैसे आपने अभी कम्युनिटी मॉडल का मेंशन किया, वैसे ही और कौन-कौन से दूसरे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं जो मुस्कान फाउंडेशन या फिर जो बाकी रिहैब सेंटर्स हैं वो यूज करते हैं? जी, देखो पूरी अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो देयर आर 8 और 10 ट्रीटमेंट मॉडल फॉर द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु सफर्स फ्रॉम ड्रग अब्यूज. पहला मॉडल है मेडिकल मॉडल, जिसको हम सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट they run this kind of program, private psychiatrists, and all the government hospital where department of psychiatry is available, they have facility for 15 to 20 bedded. Then दूसरा मॉडल है मेडिकल मॉडल, जिसको हम हेजल्डेन मेडिकल मॉडल और मिनीसोटा मॉडल कहते हैं, जो USA में स्टार्ट किया गया था. इट्स ए 24-day program and specially focusing on the detoxification. Detoxification is the first part of the entire treatment for substance abuse. Detoxification, in another term, is a management of withdrawal symptoms under the strict supervision of trained medical doctor or psychiatrist. Then cold turkey treatment model hai, it's also based on the detoxification. Then Narcotic Anonymous and Alcoholic Anonymous, this is 12-step program prevail all over the world. Then therapeutic community is another kind of treatment model also working all over the world. ओके, या तो आपने बहुत सारे अलग-अलग मॉडलिटीज के नाम बताए, बट आज का हमारा फोकस है थेरेप्यूटिक कम्युनिटी मॉडल. सो टू बिगिन विद, कैन यू टेल अस व्हाट इज अ थेरेप्यूटिक कम्युनिटी? Therapeutic community, therapeutic is derived from the therapy.
Community is a people where community is a group of people where they stay. It's a community. It's a colony. Therapeutic community, in short, is known as TC. Originated in ancient Greece at was followed by USA in 1950, gaining popularity as mutual help phenomena or a form of self-help. It also means a live a harmonious, drug-free Dr. Bhushan? I think we lost him. Yeah, he's back. specially designed program. Specially designed program means just like our shirt. Shirt is specially designed. We have a button, we have a collar, we have a pocket. In pant, it is also specially designed. So in therapeutic community, it's a designed by experienced people, and it has specific characteristic. How much will be the duration, who will run the program, for how many days the program will be run, what will be the outcome, everything is written. There is a specific literature developed by different experienced people, and these experienced people are like Chuck Dadrich, which is a USA native, stay in California. He started this program in 1958. Then another fellow by the name of E. Leon in 1995 developed this therapeutic community treatment model with the help of principle of Alcoholics Anonymous and Narcotic Anonymous. So in common word, we can say that एक ऐसा प्रोग्राम जो नशेबाजों द्वारा चलाया जाता है और नशेबाजों के लिए चलाया जाता है. तो दिस इज द लमसम डेफिनेशन ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिटी. जैसे मैंने आपको बताया है कि थेरेपेटिक जो है वो थेरेपी से ड्राइव किया है, और ऐसा समूह, ऐसी कम्युनिटी जो नशेबाजों की हो. कहने का मतलब एक जगह ऐसे लोग रहें जो नशा करते हैं और उस प्रोग्राम को चलाने के लिए वो लोग जो रिकवरी में है और उनको सुपरवाइज प्रोफेशनल करें, वो थेरेपेटिक कम्युनिटी है. इसमें जो पेशेंट हैं वो एक दूसरे का डॉक्टर है. सी इफ आई एम इन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम, आई विल help my fellow drug addict for the treatment. I will motivate him. Although I am not motivated for my treatment, but the group will help each other for the treatment. जी रंजनी. हाँ, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया थेरेप्यूटिक कम्युनिटी. जी. तो इसके कोई ऐसे फीचर्स आप बता सकेंगे जो इसे बाकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज से अलग करती है? बिल्कुल बिल्कुल. पहला फीचर तो ये है कि दिस इज ए रेजिडेंशियल प्रोग्राम 24/7. पेशेंट को वहां रहना पड़ेगा, और कितने दिन रहना है that will be decided by the treatment team, और at least 6 months to 1 year वहां रहना है. ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको आप ओपीडी में चला पाओ. तो फर्स्ट इज इट्स ए 24 a day residential treatment program. Primary treatment staff most often composed of ex drug users. जो लोग नशा छोड़ चुके हैं वो उस प्रोग्राम को चलाते हैं. जैसे सुपरवाइजर वहां पे होना चाहिए, पीयर लीड काउंसलर होना चाहिए. उसके बाद आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, किचन में काम करने वाला भी एक्स एडिक्ट होना चाहिए. आपका ऑफिस असिस्टेंट भी एक्स एडिक्ट होना चाहिए. अगर आपके पास कोई एम्बुलेंस है तो गाड़ी चलाने वाला भी एक्स एडिक्ट होना चाहिए. आपका कुक भी एक्स एडिक्ट होना चाहिए. इन सबको सुपरवाइज करने के लिए आपके पास काउंसलर एंड डॉक्टर होना चाहिए. बाकी मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज एक्स ड्रग एडिक्ट. से फॉर एग्जांपल
कुछ साल पहले एक नेशनल लेवल के, ये इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम है जिसको हम रिकवरी सिंपोजियम के नाम से जाना जाता है। 2012 में रिकवरी सिंपोजियम, 6th रिकवरी सिंपोजियम दिल्ली में हुआ। उसमें फिलीपीन का एक एक्स रिकवरिंग एडिक्ट आया। जब उसने अपनी शेयरिंग करी तो वो ही वाज रनिंग ए कॉल सेंटर विद द हेल्प ऑफ 1500 पीपल फिलीपीन में। तो उसने जब शेयरिंग करी, कहता है मेरे पास कम से कम 50 से 60 लोगों की जो टीम है वो रिकवरी वाली है। मेरा कुक रिकवरी में है, मेरा ड्राइवर रिकवरी में है, मेरा पीएन रिकवरी में है, मेरा अकाउंटेंट रिकवरी में है। सो जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है उसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो आपके सेंटर से इलाज लेके निकले हैं। स्टाफ में इंक्लूड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और ट्रेंड फिजिशियन हो सकता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है। लेकिन बेसिकली जो 24/7 वाला स्टाफ है वो आपका एक्स एडिक्ट होना चाहिए, जैसे सुपरवाइजर है, कुक है, असिस्टेंट है, लाइक दैट। और सम प्रोग्राम में इन्वॉल्व रेजिडेंशियल केयर फॉर फ्यू वीक्स और लॉन्गर फॉर मोर देन 1 ईयर। जितना ज्यादा हम पेशेंट को इन पेशेंट रखते हैं उतना ज्यादा बेटर आउटकम है। और इस प्रोग्राम में लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी को एड्रेस किया जाता है, इनएडिक्वेसी को एड्रेस किया जाता है, लो सेल्फ एस्टीम को एड्रेस किया जाता है। देन लॉट ऑफ बिहेवियर विच वी सी ड्यूरिंग द एडिक्शन आर एड्रेस्ड एंड रीडिफाइंड। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। दूसरा 24/7 रेजिडेंशियल है। इट्स ए वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम। अगर हम आम भाषा में बात करें तो जो फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस ऐसी ही ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है। इनको दिस इज ए हॉलिस्टिक प्रोग्राम। अपनी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए, अपनी मेंटल बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए, अपने रिलेशन पे काम करने के लिए, सब चीजों पे के लिए दिस इज ए हॉलिस्टिक प्रोग्राम। इट्स ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जरूरी नहीं है कि नशेबाजों के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में ये ड्वेल डायग्नोसिस के लिए, जिसमें मानसिक बीमारी है, उसके लिए भी किया जाता है। और कुछ प्रिजन में जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनको करेक्शन के लिए भी ये प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, डेफिनेटली इट्स अ यूनिक प्रोग्राम जी। ओके, तो काफी सिंपल था एक्चुअली। जैसे थेरेप्यूटिक कम्युनिटी वर्ड है उसी में समझ में आ जाता है दैट कम्युनिटी मींस एवरीवन शेयर्स अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो ज्यादा से ज्यादातर लोग एक्स एडिक्ट्स होंगे एंड दे ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। कम्युनिटी फीलिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। इसका दूसरा मैंने ये कहा, दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जैसे आप बैठे हैं तो आपके नीचे फर्श है, ऊपर छत है, साइड में दीवारें हैं, है ना, पर्दा लगा हुआ है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ए दिस बिल्डिंग। ऐसे इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें बताया हुआ है कि प्रोग्राम कौन चलाएगा। स्ट्रक्चर्ड इन टर्म ऑफ प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। हेड ऑफ द पेशेंट, एक फैमिली मेंबर, एक पेशेंट का जो हेड है उनको हम चीफ कहते हैं। देन एक्टिंग चीफ है। देन डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट जैसे सर्जरी है, गायनी है, मेडिसिन है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है हम सोशल डिपार्टमेंट लेते हैं। किचन का डिपार्टमेंट है, लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग का डिपार्टमेंट है, और केयरिंग का डिपार्टमेंट है। देन अगर आपके पास वो गार्डनिंग हो सकती है तो गार्डनिंग का डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास पेट केयर है तो आप वो पेट केयर का डिपार्टमेंट हो सकता है। तो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट जहाँ पे ये पेशेंट अपने उसमें काम करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड हिरार्की है। जो पेशेंट पहले आएगा उसको हमने डेजिग्नेशन देना है, पोर्टफोलियो देना है। जस्ट लाइक हॉस्पिटल की जो हिरार्की है वैसे ही इस प्रोग्राम की हिरार्की है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिरार्की है मिनिस्ट्री की, वैसे इसकी हिरार्की है। हॉस्पिटल की हिरार्की में जैसे मेडिकल सुपरडेंट कौन बनता है, जिसको 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसे ही जो सबसे सीनियर पेशेंट है वो हेड ऑफ द प्रोग्राम बनेगा,
चीफ, जिसको हम चीफ कहते हैं, जैसे हमारी फैमिली में हेड होता है। देन ट्रीटमेंट बाय ग्रुप, इसमें कोई अकेला बंदा रह के इलाज नहीं करता, एटलीस्ट यू नीड 15 to 20 पीपल और मे वेरीज फ्रॉम 50 to 100 पीपल एट ए टाइम। तो ग्रुप जो है, ग्रुप एक दूसरे का इलाज करता है। से फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट है जिस बेस पे ये प्रोग्राम डेवलप हुआ। लोगों ने सोचा कि जब हम नशा करते हैं तो कोई ना कोई कारण रहता है कि हम एक दूसरे से सीखा हुआ है। पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर ड्रग एडिक्शन। अगर पीयर प्रेशर लीडिंग कॉज हो सकता है नशा करने का, तो ठीक करने के लिए भी पीयर प्रेशर बनाओ। तो वी यूज पॉजिटिव पीयर प्रेशर इन थेरापेटिक कम्युनिटी ट्रीटमेंट मॉडल। देन सेल्फ हेल्प होती है, इसमें पेशेंट अपनी मदद खुद करता है। बहुत सारे काम उसको रिहैब सेंटर में खुद करने हैं, अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने बर्तन खुद धोने हैं, अपनी सफाई खुद करनी है, जो घर पे रह के नहीं कर रहा। अपना हाइजीन मेंटेन करना है, उसमें खुद करना है। देन रिवार्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम है। अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और नहीं करोगे तो आपको प्रिविलेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा। देन ए प्रोग्राम रन बाय ड्रग एडिक्ट फॉर ड्रग एडिक्ट, नशेबाजों द्वारा नशेबाजों का इलाज। देन ए प्रोग्राम विच टीच फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज एंड टाइम मैनेजमेंट। नशेबाज पहले, जब हम ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल, वी लिव इन ए ग्रुप, वी लिव इन ए कम्युनिटी। लेकिन जब नशा किया तो हमने ग्रुप में रहना छोड़ दिया, हमारे व्यवहार बदल गए, हमारा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैंने कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, मैं इररिस्पॉन्सिबल बन गया, मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई। तो इस प्रोग्राम में फैमिली वैल्यूज और सोशल वैल्यूज और टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। ओके, हाँ। तो नेगेटिव पीयर प्रेशर को एंड फाइनली ट्रीटमेंट बाय सोशल थेरेपी। ट्रीटमेंट बाय सोशल थेरेपीज मीन किचन में काम करने से इलाज है, हाइजीन मेंटेन करने से इलाज है, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने से इलाज है, दूसरे की देखभाल करने से इलाज है। सोशल थेरेपी जो घर में काम करते हैं वो सारे के सारे काम थेरेपेटिक कम्युनिटी में किए जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं, ऐसे समूह में रह रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में, जहां पे सारे लोग नशा करते हैं। उन सबको हमने जिम्मेवारी का पाठ पढ़ाना है, तो सबको जिम्मेवारी देनी है, बर्तन मांजने की, आटा गूंदने की, रोटी बनाने की, खाना खिलाने की, खाना बाइंड अप करने की, उठाने की, चाय बांटने की। every member has given some or other responsibility to make them accountable and responsible. और इस प्रोग्राम में हमें जो कुछ चीजें मिलती हैं वो यही हैं। एक तो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं और बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है इस प्रोग्राम के जरिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम टू मॉडिफाई योर बिहेवियर। आप अगर गाली देते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, सब तरीके के जो आपके बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर, उनको मॉडिफाई करने का वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडल इन द वर्ल्ड। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू मेक ए मेंबर responsible about his own responsibility, family responsibility and national responsibility. Similarly, accountability. Then time management is very beautifully managed, very beautifully. You cannot be late within 5 minutes or within 6 minutes. There is a schedule. Say for example, if you have to wake up at 7, there is a tool to make you wake up by ringing a bell. Even then, if you are not waking up, then next day you will be planned for what kind of responsibility you will given. 7 बजे उठने का टाइम है, 7:05 पे नहीं उठेंगे, और 7:05 पे उठेंगे तो आपसे सवाल जवाब किया जाएगा।
ऐसे लंच का टाइम है 1:30 बजे तो 1:30 बजे ही लंच करना है। 9 बजे अगर डिनर का टाइम है तो 9:05 नहीं होगा। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बिकॉज जब मैं नशा कर रहा था आई वॉज नॉट विद इन माई टाइम फ्रेम। मुझे टाइम की कोई वैल्यू नहीं पता थी। मैं कितने बजे उठता था, कितने बजे खाता था, मैं जिम्मेवार था या नहीं जिम्मेवार था, ड्यूटी करता था नहीं करता था, नहाता था नहीं नहाता था, खाना खाता था नहीं खाता था, फैमिली को खाने देता था नहीं खाने देता था। एवरीथिंग विल बी अचीव्ड बाय टाइम मैनेजमेंट। देन रिलेशनशिप, अगर एक रिहैब सेंटर में हम 50 लोग रह रहे हैं तो हाउ टू डील विद माय सीनियर, हाउ टू डील विद माय एल्डर, हाउ टू डील विद माय यंगर, रिलेशनशिप पे काम करना जो हमारा बिगड़ा हुआ था, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगड़ी हुई थी, उन सबको ठीक करने के लिए ये है। एंड लास्टली प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड ए कंट्री। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं कमाऊ होना चाहिए। आई वुड बी ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली। इसीलिए तो फैमिली वो कर रही है, हमारा इलाज करवा रही है। अगर हम अपनी फैमिली में प्रोडक्शन नहीं ला सकते, कमाऊ नहीं बन सकते, तो मेरा ठीक होना ठीक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री। जी राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कैसे नेगेटिव पीयर प्रेशर में आके लोग ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं एंड उसी को पॉजिटिव पीयर प्रेशर में कन्वर्ट करके वी कैन मेक देयर लाइव्स बेटर। जी सो अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई जो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी अचीव करती है। अदर देन दीज, क्या कोई और ऐसे स्पेसिफिक गोल्स है जो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी का एम है? जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का गोल होता है टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट फॉर थेरेप्यूटिक कम्युनिटी? थेरेपेटिक कम्युनिटी हमारे 5 उस पे डिपेंड हैं, 4 पिलर पे। एक तो फिजिकल गोल है कि फिजिकल हमारी फिजिक्स ठीक होनी चाहिए, जिसमें हम डाइट का ख्याल रखते हैं, रेस्ट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और कोई बीमारी है तो दवाई का ख्याल रखते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन फिजिक्स विद दीज 5 एलिमेंट्स। सेकेंडली है मेंटल, जो है हमारा मेंटल वेलबींग ठीक होना चाहिए। उसके लिए हम 3-4 अलग अलग तरीके से, जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग है, ग्रुप सेशंस हैं, उन पे बात करते हैं तो उनका मेंटल लेवल असेस करते हैं और उनको मजबूत करते हैं। देन स्पिरिचुअल लेवल के लिए भी है डिफरेंट काइंड ऑफ 8 और 10 प्रेयर। खाने की प्रेयर अलग है, सोने की प्रेयर अलग है, सेशन स्टार्ट करने की प्रेयर अलग है, और एक जनरल प्रेयर जिसको सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं, वो दुनिया के कई सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं, कई सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो प्रेयर से जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का एक मतलब वो भी है कि जैसे जो नशेबाज हैं उनका स्पिरिचुअल बैंक करप्सी हो जाती है। स्पिरिचुअल अकाउंट जो है, जो स्पिरिचुअल खाता है उनका आध्यात्मिक खाता, वो जीरो है। तो स्पिरिचुअल अकाउंट को अपना जमा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, तो जो इन प्रेयर के जरिए होती है। तो आपका स्पिरिचुअल अकाउंट भी मजबूत रहना चाहिए। और स्पिरिचुअल कंपोनेंट पूरे इलाज का टॉप है। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, अगर आपका स्पिरिचुअल कंपोनेंट इलाज में टॉप पे है, मेडिकल कंपोनेंट, देन फैमिली कंपोनेंट, देन साइको सोशल कंपोनेंट, आफ्टर केयर प्रोग्राम, ये सारे डिपार्टमेंट है इसके ट्रीटमेंट प्रोग्राम के, और टॉप में स्पिरिचुअल कंपोनेंट है। तो बहुत सारी प्रेयर है जिससे मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट हमारा मजबूत होता है। सोशल कंपोनेंट एक हमारे इलाज का सोशल कंपोनेंट भी है, इसलिए हम इसको साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल भी कहते हैं। बीमारी को भी ये कहते हैं, दिस इज ए डिजीज विच इफेक्ट आवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस इज ए डिजीज विच इफेक्ट आवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बी इट ए मेंटल लेवल, be it a physical level, be it a family level, be it a society level, be it a spiritual level, be it financial level, और be it a legal level, सबको अफेक्ट करेगी। तो इन सबको ठीक करने के लिए आपके इलाज में ये सारे कंपोनेंट होना चाहिए, अदरवाइज
the treatment is not complete. Treatment is not holistic. So you have to deal with the mental level, you have to deal with the physical level, you have to deal with the spiritual level, you have to deal with the पेशेंट को फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी पढ़ाना है कि आप जब जाओगे यहाँ से इलाज करने के बाद कोई नौकरी करोगे तो आपका जो फाइनेंशियल है कैसे खर्च होना चाहिए, कौन सुपरविजन करेगा, उसके बारे में भी बात करनी है। क्योंकि नशे के टाइम पे उन्होंने बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस किया होता है, उसको रीगेन करना है। और सोशल जो कंपोनेंट है उसमें हमने फैमिली को मिलाना है, कम्युनिटी को मिलाना है। और इस प्रोग्राम में थेरेपेटिक कम्युनिटी में डिपार्टमेंट हैं, जो मैंने बताया किचन का डिपार्टमेंट है, मैंने बताया रिकॉर्ड कीपिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने बताया लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट, मैंने बताया आपको कि पेट केयरिंग का डिपार्टमेंट है। लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट का मतलब है एक जगह 50 लोग रह रहे हैं और सारे के सारे अपना हाइजीन नहीं मेंटेन करते, तो उनके कपड़ों की देखभाल कौन करेगा? उसके लिए यू हैव टू पुट ऑन ए डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, जिसमें 2 या 3 लोग उन सारे लोगों के कपड़ों का ख्याल रखेंगे कि चादर कितने दिन बाद धुली है, तकिया कितने दिन बाद धुला है, आपकी पैंट शर्ट कितने दिन दिन धुई है, आपका टॉवल कितने दिन धुला है। इन सब के प्रोग्राम के तहत बी फॉलोड। मैंने अपने 32 साल में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि आकांक्षा, डॉक्टर भारत और फलाना फलाना नाम लिखा जाता है जितने पेशेंट हैं, और एक फिक्स डे किया हुआ है कि हमारे अंडरगारमेंट कब धुलेंगे, टॉवल कब धुलेंगे, बेडशीट कब धुलेंगे, चादर कब धुलेंगे। तो सोशल डिपार्टमेंट में किचन का हो गया, लॉन्ड्री का हो गया, केयरिंग का हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग का हो गया। कुछ पेशेंट ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आज सेशन हुआ, किसने लिया, आरती कितने बजे हुई, किसने किया, किचन में कौन लोग हैं, लॉन्ड्री में कौन है, दूसरे में कौन है। तो एक सोशल डिपार्टमेंट है। कुल मिला के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। बिहेवियर आइडेंटिफाइड है, उन बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई कौन करेगा? जैसे आप उसको कहोगे, आकांक्षा को कहोगे, आपकी आकांक्षा आप गाली देते हो और अपनी एक कॉपी है उस पर लिखोगे। मैं कहूंगा नंदिनी आप झूठ बोलते हो, मैंने अपनी कॉपी पे लिख दिया, आपको अवेयर करवा दिया। इस तरीके से सारे लोगों ने आपको नंदिनी को झूठ बोलने का व्यवहार आइडेंटिफाई करवा दिया कि नंदिनी के दिस इज द बिहेवियर एटीट्यूड, आकांक्षा में ये है, डॉक्टर भारत में ये है, फलाने में ये, सबके नाम लिख ली और रोज लिख ली। तो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बहुत बढ़िया मॉडल है। देन जो गोल आपने पूछे हैं, इसके स्पेसिफिक गोल भी है, साइकोलॉजिकल गोल भी है और सोशल गोल भी है। ग्लोबल गोल जो है रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजिकल गोल टू चेंज द नेगेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थिंकिंग, फीलिंग दैट प्रीडिस्पोजेस टू द ड्रग अब्यूज। जो हमारे व्यवहार हैं जो ड्रग अब्यूज की तरफ ले जाते हैं, उनको हमने पॉजिटिव करना है। एंड इन थेरेपेटिक कम्युनिटी वी हैव द community has identified about 50 behavior negative behavior pattern। 50 व्यवहार है जो दुनिया ने रिसर्च करके लिखे हैं। पहले उनको पेशेंट बताते हैं, जो एक दूसरे के डॉक्टरी कर रहे हैं, पेशेंट एक दूसरे के इलाज में मदद कर रहे हैं, पेशेंट एक दूसरे को बताएगा कि नंदिनी आपके अंदर ये एटीट्यूड, फिर डॉक्टर एंड काउंसलर आपको रीडिफाइन करेगा कि कैसे ठीक करें। Social goal to develop a responsible drug-free life। जी ओके तो जैसे आपने कहा सारे एस्पेक्ट्स अफेक्ट होते हैं एडिक्शन से, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सारे ही एस्पेक्ट्स को एड्रेस करें। और आपने पहले भी कहा कि स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है इस मॉड्यूल में। So is there a structure as to the treatment plan and the procedure? और जैसे अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है किसी का, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? जी, that is also structured। जैसे पेशेंट एडमिट करना है तो पेशेंट को कुछ ओपीडी में आने के लिए फॉर्मेलिटीज है कि पेशेंट ओपीडी में आएगा, कितने दिन ओपीडी में आएगा, बिफोर प्री एडमिशन
फिर फैमिली को बुलाएंगे, फैमिली को एजुकेट करेंगे, फैमिली को बताएंगे कि इलाज कितने दिन का है, आपका क्या रोल है, कितने दिन हम दाखिल रखेंगे, दवाइयाँ कितनी देते हैं, और आपको कितने दिन बाद फैमिली मीटिंग में मिलने दिया जाएगा। तो एडमिशन के टाइम पे पेशेंट को क्या इलाज देना है, कौन इलाज देगा, कहाँ पे पेशेंट रहेगा, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बिफोर एडमिटिंग द पेशेंट। कुछ टेस्ट करवाने हैं हमने कि ये टेस्ट करवा लो दाखिल होने से पहले, और कुछ दाखिल के बाद भी करवा सकते हैं। कोरोना टेस्ट जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो हम पहले कोरोना का टेस्ट करवाते हैं, फिर पेशेंट को अटेंड करते हैं। फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट को ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं, और जरूरत पड़ी तो वो डॉक्टर की कंसल्टेशन है। फाइको डॉक्टर भूषण, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हाँ अभी ठीक है, बीच में फैमिली फ्रीज हो को गया था वीडियो। फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारी इस मॉडल में भी है, और अगर आप ये मॉडल नहीं भी चलाते तो भी आपको एडमिशन से पहले फैमिली को एजुकेट करना है। फैमिली इज नोन एज को-डिपेंडेंट। देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ को-डिपेंडेंसी, एंड फैमिली इज को-डिपेंडेंट। एक ऐसी बीमारी है जिसमें फैमिली सबसे ज्यादा सफर करती है। फैमिली के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, फैमिली के डायनामिक बदल जाते हैं, फैमिली के फैब्रिक टूट जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए जितना आप कोशिश फैमिली पे करोगे, फैमिली को री एजुकेट करोगे, फैमिली को काउंसल करना है, और कहीं कहीं पे फैमिली को इलाज की भी जरूरत है। जो नेगेटिव पैटर्न बिहेवियर पेशेंट का बना है वो फैमिली का भी बन जाता है। बहुत सारी फैमिली हमने देखी कि वो झगड़ा नहीं करती थी लेकिन झगड़ालू हो गई। बहुत सारी फैमिली है झूठ नहीं बोलती थी, झूठ बोलने लग पड़ी। वो बहुत सारी फैमिली में ऐसा देखा गया कि पेशेंट तो तैयार है इलाज के लिए, लेकिन फैमिली उसकी डॉक्टर बनी हुई है, वो हमें समझा रही है कि डॉक्टर साहब इसको ऐसे करना, इसको ऐसे समझाना है, इसको ऐसे करना। मेरी क्या फिर सलाह होगी फैमिली को कि मैडम जी जब आपने ये सारा मेरे से ही करवाना है, आपने समझाना है तो घर बैठ के ही समझा लो। तो समटाइम फैमिली बिकम दिस ओवर एजुकेटेड, वो समझाने लगती है। तो फैमिली को यू हैव टू गिव द क्लियर पिक्चर कि ये बीमारी है, ये इलाज है, और ये आउटकम है। आउटकम के बारे में भी पढ़ाना है। दिस इज नॉट ए डिजीज विच गिव यू 100% क्योर रिकवरी, बहुत मुश्किल वाली रिकवरी है। तो जितना टाइम आप फैमिली के साथ पहले सेशन में लगाओगे बिफोर एडमिशन, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। फैमिली का रोल क्या है ये आपने बताना है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है ये आपने बताना है, फैमिली के डायनामिक्स जो खराब हुए हैं उसको कैसे ठीक करना है ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्री एजुकेटेड, दीज आर द सेट स्टैंडर्ड बिफोर एडमिशन। फैमिली को मिलने दिया जाता है, कितने दिन बाद जाना है, टेलीफोन पे बात करवानी है, कितने दिन बाद करवाना है। मैंने फैमिली को कहा कि इलाज की 6 महीने की जरूरत है, फैमिली महीने बाद ही आ गई है, इसको ले जाना हमने। मैंने कहा नहीं ऐसे तो होगा नहीं। कह रहे नहीं जी हमें कोई जरूरत पड़ गई, इसकी शादी करवानी। जाओ जी शादी करवा लो, महीने बाद दोबारा आ जाना। तो यू हैव टू एजुकेट द फैमिली। फैमिली कहती है जी मेरा तो मानसिक, मेरा मेंटल लेवल खराब हो गया, तो उसको साइकेट्री से उसका भी इलाज करवाना है। बहुत सारी फैमिली जो है वो कोमॉर्बिडिटी की शिकार हो जाती है, डुअल डायग्नोसिस बन जाती है। जैसे पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, पेशेंट को मूड डिसऑर्डर है, पेशेंट को डिप्रेशन है, फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाती है। तो यू हैव टू ट्रीट बोथ एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है पहले मरीज को ठीक कर लें फिर फैमिली को कहेंगे अब आप भी इलाज करा लो। तो फैमिली को साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट देना है। डिस्चार्ज के बाद जो सेट है, हर पेशेंट को भी गिव ऑप्शन कि आप हमारे साथ जुड़ो। हमारा जो 20 लोगों का स्टाफ है इस समय इस रिहैब सेंटर में, उसमें से 12 रिकवरिंग एडिक्ट है। जिसको हमने ठीक किया, गेट की ड्यूटी वो देता है,
किचन की ड्यूटी वो देता है, ऑफिस असिस्टेंट का वो है, ऑफिस में वो काम करता है, पीयर काउंसलर वो है, कुक वो है। तो लाइक दैट सबसे पहला जो डिस्चार्ज के बाद जो प्लान है हमारा कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, पहले कुछ दिन के लिए वॉलंटियर, देन यू विल बी पेड। सेकेंडली, दूसरा है कि घर जा रहे हो तो प्लान है कि आपने हमारे से टेलीफोन पे बात करनी है, देन यू हैव टू विजिट द सेंटर एज एंड व्हेन, जब आपको अच्छा लगे। फैमिली से बात करनी है कि इस पे आपने सुपरविजन करना है। पेशेंट को कहना है कि जो फेथ आपने जहां कमाया उसको बना के रखना है। अगर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा तरीके से करना है, इतने पैसे देने हैं और उसका हिसाब लेना फैमिली को का है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप घर से बाहर जाओगे तो फैमिली को कह के जाओगे, 15 मिनट के लिए जा रहे हो तो 15 मिनट में ही आना है, 15 मिनट में जा रहे हो और 2 घंटे बाद आ रहे हो तो आप नहीं, वो नहीं चलेगा। एंड उसकी रिकवरी को प्रमोट करने के लिए जो रिकवरी सेलिब्रेशन है, साल अगर 1 साल हो जाता है तो वी हैव टू सेलिब्रेट हिज, उसके लिए फैमिली भी आती है और पेशेंट भी आता है। तो लाइक दैट इज अ सेट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड व्हिच वी फॉलो बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर। Okay. It does sound like a proper community. So, Proper community, it's a हाँ, miniature community. right. And there are a lot of aspects which are being covered. तो कुछ Yes. टेक्निक्स आप शेयर कर सकते हैं जो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी में यूज होती है, जैसे कि प्रेयर आपने एक मेंशन किया था। आर देयर Yes. एनी अदर टेक्निक्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? इसमें एक तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट है, तो वी हैव केयरिंग डिपार्टमेंट, वी हैव रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट, वी हैव हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, वी हैव पेट केयरिंग, वी हैव लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। सेशन की बात करते हैं, वी हैव ए स्ट्रक्चर्ड सेशन। स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंट हो गए और स्ट्रक्चर्ड सेशन है, मॉर्निंग मीटिंग है, इट्स ए होनेस्टी क्लास, रोज होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी और उसमें 24 आवर्स में पिछले क्या बीता है, टोटल पेशेंट क्या है, बीमार कौन है, होनेस्टी पे बात करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डिसऑनेस्ट, दे आर डिसऑनेस्ट बाय देयर ओन, दे आर डिसऑनेस्ट विद द फैमिली, दे आर डिसऑनेस्ट विद द सोसाइटी। उनको होनेस्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ये रोज क्लास है, देन सेमिनार है, देन एक एंगर मैनेजमेंट सेशन है, वो बड़ा ब्यूटीफुल सेशन है। उसमें जैसे मेरी और आपकी मान लो बहस होती है और मैं आपको, हम दोनों को बताया हुआ काउंसलर ने कहीं लड़ना नहीं है, और जिसकी गलती है उसके नाम की एक आप स्लिप डाल सकते हो। देयर इज ए बॉक्स बाय द नेम ऑफ एंगर बॉक्स, एंगर स्लिप बॉक्स। आपने मेरे नाम की, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मेरे नाम की स्लिप डाल दी, ऐसे आकांक्षा से आपकी बहस होगी, आपने आकांक्षा के नाम डाल दी। इस तरीके से सारा वो चलता है। हफ्ते में 2 बार ये वो सेशन होता है एंड इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड सेशन। पार्लियामेंट का सेशन देखा आपने कभी? पार्लियामेंट में ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ऊपर बैठता है और पीएम नीचे बैठता है। इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है। जो रूलिंग है वो राइट होती है और उनके अपोजिशन वाले लेफ्ट में बैठते हैं, और जो स्पीकर है वो पूरे सेशन को ऑर्गेनाइज करता है। आपने कोई बात करनी है तो यू हैव टू गिव इन राइटिंग टू द स्पीकर, स्पीकर विल गिव यू परमिशन कि हाँ आप बोल सकते हो, नंदनी आप बोल सकते हो। इट्स ए स्ट्रक्चर्ड, ऐसे इसमें है। जिस दिन ये प्रोग्राम होता है तो उस बॉक्स में 300, 400, 500 स्लिप्स निकलती है। वो सारी की सारी स्लिप 4 दिन की होती है और 50-60 पेशेंट की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फैमिली। कितनी बड़ी फैमिली है, कितने पेशेंट है उसमें। उस एंगर मैनेजमेंट का है कि आपने मुझे जो मैंने कहा था, आपने उस बदले में कुछ नहीं कहा, आपने अपने आप को कंट्रोल किया। और जब वो पर्ची खुली तो काउंसलर ने आपको बोला नंदिनी आप अब बोलो, तो आपने बता दिया कि डॉक्टर भूषण ने मुझे ये कहा था, मुझे वो कहा था। मैं
आइदर आई हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स, नहीं तो फिर फैमिली, जो पूरी फैमिली डिसीजन लेगी वो करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा टेढ़ा बंदा हूं, मैंने नहीं माना। फिर आकांक्षा ने भी मेरे नाम की पर्ची निकाल दी, फिर तीसरे बंदे ने भी मेरी पर्ची निकाल दी। तो काउंसलर जो कहता है कि आपके नाम की, तो भैया गलतियां बहुत है। हाउ यू आर लाइंग। तो मेरा जो झूठ बोलने का व्यवहार है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अल्टीमेटली आई हैव टू एक्सेप्ट द माई नेगेटिव एटीट्यूड एंड आई हैव अपोलोजाइज फ्रॉम जिनसे भी मैंने गलत किया। बहुत जबरदस्त बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बहुत। एंड I think you have seen my slides. There is a list of behaviors, about 50 behaviors. उन्हीं बिहेवियर पे ये सारा का सारा वो है। देन जो सेमिनार है उसमें अप्रिशिएशन सेशन भी होता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना है। थेरेपेटिक कम्युनिटी में हमने बिहेवियर के भी सेशन बात करनी कि ये जो व्यवहारों पे हम काम करते हैं। 12 स्टेप जो प्रोग्राम है उसकी भी बात करनी है। नार्कोटिक एनोनिमस क्या है और अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है। मेडिकल के कुछ चैप्टर हैं कि मेडिकल में क्या क्या बीमारियां होती हैं नशे से, उनकी बात करनी है। फैमिली का क्या रोल है वो भी हमने बात करनी है। इन सब से हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सारी के सारे सेशन के जरिए बात करनी। थेरेपेटिक्स कम्युनिटी में कुछ एक टूल है जिसको हम कन्फ्रंटेशन कहते हैं। वो पहले दिन से हम पेशेंट को सिखाना है। अगर कोई अपना इनडिसिप्लिन होता है तो हर मेंबर को ये राइट है कि उससे मैं पूछूं कि ये इनडिसिप्लिन क्यों हुआ, जिसको हम कन्फ्रंटेशन कहते हैं। जैसे किसी बंदे ने वो सवेरे 7 बजे उठने का टाइम है, वो नहीं उठा, तो कोई भी मेंबर उससे पूछ सकता है क्यों नहीं उठे। एक पेशेंट ने खाना नहीं खाया तो वो उससे पूछ सकता है क्यों तुमने खाना नहीं खाया, और कॉपी पे नोट करेगा और काउंसलर को बताएगा। एक पेशेंट ने दूसरे को गाली दिया तो वो पूछ सकता है तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तो कन्फ्रंटेशन इज द बेसिक टूल, कन्फ्रंटेशन इज वंडरफुल टूल, एंड कन्फ्रंटेशन इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिटी टू lay on the treatment program. देन कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस का मतलब जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं उसको क्लास में कह के स्टेजेस है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में मुझे एक्सेप्ट करना है कि मैं बीमार हूँ। स्टेज 2 में मैं बीमार के साथ मैंने कुछ अपने व्यवहारों पे काम करना है। स्टेज 3 में मैंने दूसरों की सेवा भी करनी है, एक्सेप्ट भी करना है, व्यवहारों पे काम करना है, दूसरों की सेवा करनी है। एंड स्टेज 4 जो है लास्ट। तो हर स्टेज 1.5 महीने की है, 1.5 month एवरी स्टेज, इसलिए 6 month का प्रोग्राम है, 4 into 1.5। देन आफ्टर केयर प्रोग्राम है जिसमें पेशेंट को हम डिस्चार्ज के बाद बुलाते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट का जो थेरेपेटिक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो अपने आप में एक तो इंटेंसिव प्रोग्राम है। दूसरा, पेशेंट को जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसका सारा का सारा पेशेंट रिकॉर्ड रखेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर भूषण। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन यूजुअली कितना होता है, बट आपने ऑलरेडी बता दिया 6 months मिनिमम टाइमलाइन है ना ट्रीटमेंट का? जी राइट, ओके, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नॉर्मल दिन कैसा होता है इस ट्रीटमेंट मॉडलिटी में? लाइक व्हाट इज द स्केड्यूल एवरी डे? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट जहां भी ह्यूमन बीइंग रहेंगे, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो हॉस्टल है, चाहे वो ऑफिस है, अगर वहां पे शेड्यूल नहीं लगा हुआ तो it will create hodgepodge, it will create indiscipline among the people who are living there. शेड्यूल अपने आप में इस बीमारी का
एक बहुत बड़ा इलाज का हिस्सा है। से फॉर एग्जांपल ये शेड्यूल मैंने टांग दिया अपने रिहैब सेंटर में, और इसमें से अगर 50% भी पेशेंट फॉलो कर रहे हैं, इसमें उठने का टाइम है, इसमें खाने का टाइम है, इसमें क्लास का टाइम है, इसमें डॉक्टर की ड्यूटी का टाइम है, इसमें भजन कीर्तन का टाइम है, एवरीथिंग इज रिटन। आज कौन सी क्लास होगी वो भी है। तो ये शेड्यूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पूरे ट्रीटमेंट का। तो कोई जरूरी नहीं है आपने दवाई देनी है मरीज को। जो मरीज ठीक है उनको शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अगर टाइम से उठ गए तो बहुत बड़ा व्यवहार चेंज हो गया है। टाइम से खा रहे हैं तो बहुत बड़ा व्यवहार चेंज है। डिसिप्लिन में खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे तो बहुत बार है। घर में क्या करते हैं, नशा करके अपना भी फेंक दिया और फैमिली को भी नहीं खाने दिया। तो शेड्यूल जो है वो that is the important tool of the entire treatment program that has to be displayed in the classroom or in the activity room. तो शेड्यूल होता है। अब वो भी मैंने स्लाइड में शायद भेजा हुआ है आपको, इफ यू हैव सीन। 7 बजे उठना है, सर्दियों में 7 बजे है, गर्मियों में 6 बजे है। उसके बाद गेटअप है, तैयार होना है, उसके बाद प्रेयर है, उसके बाद योगा है, उसके बाद ब्रेकफास्ट है, उसके बाद पहली क्लास है जिसको मॉर्निंग मीटिंग कह रहा हूं मैं, ऑनेस्टी क्लास है, उसके बाद टी ब्रेक है, उसके बाद री एजुकेशन सेशन है, उसके बाद लंच है, उसके बाद फिर रेस्ट है, फिर एक सेशन है, फिर इंडोर गेम्स हैं, फिर प्रेयर है, और उसके बाद रात का डिनर है एंड नाइट आउट। तो दिस इज अ शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके, तो मतलब हर चीज में एक स्ट्रक्चर है, एंड आई कैन सी कि स्केड्यूल में भी, डेली स्केड्यूल में भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जी सो जैसे आपने बताया था कि फैमिली को भी एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि व्हाट द डिसऑर्डर इज एंड व्हाट द आउटकम इज। So जी। what is the procedure in case of relapse? रिलैप्स में एक तो अगर आपके पास पेशेंट पहले से इलाज किया हुआ तो यू नो द हिस्ट्री, यू नो द पेशेंट्स बिहेवियर, यू नो द फैमिली। अगर पेशेंट नया है तो थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन पेशेंट पहले आपके वहाँ जहाँ रह के गया हुआ है तो यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग। हमने फोकस करना है कि इसके रिलैप्स का कारण क्या रहा, इसके रिलैप्स का कारण क्या रहा है। और दूसरा, हमें हमारी टीम को, थेरेपेटिक कम्युनिटी टीम को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पेशेंट रिलैप्स होगा जब, जो आउटकम क्या है। से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं 3 लोग ठीक होंगे 100 में। और ज्यादा अच्छा काम कर लोगे, जैसे जिस मॉडल पे हम बात करते हैं, तो कुछ कहते हैं हम 50 लोग ठीक कर लेते हैं, कुछ कहते हैं 30 लोग ठीक कर लेते हैं, कुछ कहते हैं 40 लोग ठीक कर लेते हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिन्होंने ठीक होना है वो 4-5 ही है, बड़ी मुश्किल से 10 है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ लॉन्ग यू रन दिस प्रोग्राम। तो रिलैप्स के लिए आपको उसका जो फोकस करने है, कारण क्या रहा है, पेशेंट अगर शेयर करता है तो प्रोग्राम उसको ज्यादा इंटेंसिव देना है। अगर पहली बार आते हो तो प्रोग्राम कम इंटेंसिव होता है, ड्यूरेशन उसकी उतनी रहनी चाहिए। कई बार लोग ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, जैसे 6 महीने पहले लगाया तो इस बार साल कर देते हैं। तो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, फिर उस पेशेंट को आप अपने साथ जोड़ने का एक बहुत स्ट्रांगली मोटिवेट करोगे इसको। किसी तरीके से आपके साथ जुड़ गया पेशेंट तो रिलैप्स के चांस कम है, अगर नहीं जुड़ा तो वो रिलैप्स फिर होगा। तो रिलैप्स के बारे में पढ़ना, 20 साल पहले जब मैं इस बीमारी के बारे में काम करता था तो मुझे लगता था कि we will treat most of the people with good recovery. Then one day I come across a National Institute of Drug Abuse of USA NIDA जर्नल। उसमें कहा हुआ था कि आप फैमिली को और पेशेंट को रिलैप्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर दो। रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी, और रिलैप्स एक फंडामेंटल होना ही है। बहुत कम लोग हैं जिनका रिलैप्स नहीं होगा।
तो मैंने कहा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ये कैसी बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव, एक तरह से नेगेटिव चीज है कि भाई दोबारा होना ही है, उसके बारे में बताना शुरू कर दो। बट दिस इज द फैक्ट। उसको तैयारी करनी है, फैमिली को भी तैयार करना है, पेशेंट को भी तैयार करना है। अगर आपके साथ जुड़ता है पेशेंट तो रिलैप्स के चांस कम है। Okay. So focusing on the reason for relapse and then doing the Yeah. procedure again. Yes. Okay. So बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स है और बहुत ही यूनिक टेक्निक्स है बाकी मोडालिटीज से कंपेयर किया जाए तो. So can you share some advantages of this particular approach over other approaches? As I am an international trainer of this program, so I admire this program. गड़ा बनाने वाला जो है वो अपने गड़े की हेलो Yes, Dr. Bhushan, we can hear you. गड़ा बनाने वाला अपने गड़े की प्रशंसा करता है. Similarly, I admire this treatment modality. First, this is very intensive program. दूसरा, जो लोग दूसरे ट्रीटमेंट मॉडल से फेल हो गए हैं, जैसे नार्कोटिक एनोनिमस है, अल्कोहलिक एनोनिमस है, जहां पे एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती. NA and A don't allow people to get admitted in anywhere. They don't they don't have IPD treatment model. जो लोग वहां नहीं ठीक होते उनको हम थेरेपेटिक कम्युनिटी ट्रीटमेंट मॉडल में वो करते हैं. तीसरा, जो ड्वेल डायग्नोसिस है, जिन पेशेंट को दिमाग की कोई बीमारी, चाहे सिजोफ्रेनिया है, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, चाहे मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ड्वेल डायग्नोसिस के लिए भी दिस प्रोग्राम इज वेरी encouraging program, encouraging treatment modality. This has been said by NIDA, और वो भी आज से 20 साल 25 साल पहले ही नाइडा ने कह दिया था कि थेरेपेटिक कम्युनिटी इज बेटर प्रोग्राम फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम ड्वेल डायग्नोसिस. और बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, टाइम मैनेजमेंट का, अकाउंटेबिलिटी का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ये. कि टाइम मैनेजमेंट जिसने एक बार पढ़ लिया थेरेपेटिक कम्युनिटी में, लाइक आई रिसीव स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनेजमेंट साइड फॉर इंटर्नशिप. MBA के बच्चे आते हैं हमारे पास, जो जहाँ पे तीन हफ्ते की ट्रेनिंग करते हैं टाइम मैनेजमेंट की या सोशल इसका ड्रग अब्यूज के ट्रीटमेंट की, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. उनको ये लोग पढ़ाते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कितने बजे आना है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी क्लास अटेंड करने का टाइम 10 बजे है तो वो 10:30 बजे चले हुए. कल कोई खास प्रोग्राम है तो घर से फोन कर रहे हैं कि हम नहीं आ सकते, लाइक दैट. तो टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. और जितना नशेबाज डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम नहीं, एंड इज नॉट ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द. बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने बुक किया है, वो ऑर्गेनाइज हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से. एंड फैमिली जब पेशेंट से मिलती है फर्स्ट टाइम, दूसरी बार और डिस्चार्ज करके लेके जाती है, तो वो बिलीव नहीं करती कि ये मेरा ही पेशेंट है. जिसको मैं जहाँ छोड़ के गई थी इलाज के लिए, वो वही है. ये इसमें इतना बदलाव कहाँ से आया? द बिहेवियर चेंजेस. ओके. आपने स्टार्टिंग में बोला था कि घड़ा बनाने वाला अपने घड़े की तारीफ करता है, but I personally also really was very impressed with this whole modality because बहुत ही unique है, and it works on the principles of learning from each other and teaching each other and recovering together. So मेरे पास तो इतने ही questions थे. अभी हम guest के questions ले सकते हैं. Sure. The audience question. Okay. Right. There's one. Does the foundation provide free treatment for the BPL people?
Yes. Okay. There's another See, question. Yes. see, we are running a program supported by Government of India where BPL patients are considered absolutely free of cost. But Government of India allow us to treat only for 1 month. Sorry, only? 1 month. Oh, okay. But we need treatment for at least 6 months to 1 year. Then we manage however we manage with minimum charges or sometimes in most of cases the free of cost. Okay. There's another question. I think you already addressed this during the webinar. Can we reduce or increase the treatment length according to the patient's needs? Yes, absolutely. It should be a tailor-made. It should not be fixed for everyone. It depends more upon the behavior you have developed during substance use. Right. See, for example, नशा करने के बाद मेरा दिमाग में कुछ चेंज आया है, से फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन आया है, मेरा नशा करने से फिजिकल बॉडी में कोई चेंज आया है, से फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल लेता था तो लीवर में कुछ डैमेज हुआ, मेरा नशा करने से मेरा फैमिली में डिस्कॉर्ड चल रहा है, मेरा नशा करने से मेरा कोई जो लीगल एस्पेक्ट है वो खराब हो गया, कोई क्राइम हो गया है, अगर इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं या रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है तो इनको ठीक करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, और मेरे ये सारे के सारे पिलर ठीक हैं तो टाइम में भी लेस, बट वो अगेन जैसे हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है, तो उस फर्स्ट क्लास के लिए जितना टाइम लगना चाहिए उतना कम से कम हमें इलाज में देना। Okay, there's one question जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि you have worked in this area for such a long time. Is there any experience or any story that you would like to share with us? हाँ, मेरे भी सामने बैठे हुए हैं, एटलीस्ट वी हैव ए 15 स्टाफ हियर listening my sessions. One of the senior most staff is about he has recovery of 18 years. Wow. He went to WHO Geneva and attended one international conference that was especially on non-communicable disease, and he advocated there to add drug addiction and alcoholism in non-communicable disease. Oh. He was nominated for president award, but unfortunately not get. But still we are in a queue. Then third one, who is this handling this gate and all. हमने उसको चाबी दी हुई है जो घर से निकाल दिया था, जिसको घर वाले नहीं घुसने देते, वो गेट पे बैठा हुआ है। किचन में जिसको कभी रोटी नहीं बनाना आती थी वो कुक बना हुआ है। So we have a story of 15 to 20 people here inside, and I recommend you उनको कभी चांस देना जिससे वो भी अपनी बात कभी इनमें से कोई एक बात कर पाए. It's a kind of sharing about journey of addiction and recovery. Absolutely. That's very inspiring, I think, definitely for our listeners as well. Yes, they are my co-trainer also. Right. I am national and international trainer with Government of India, and some of these go with me to share their story. That's really inspiring. So it's not just treatment, it's really life changing for them. You know? अगर हम लाइफ चेंज नहीं कर पाए तो फिर तो हमारा इलाज करने का वो कोई मकसद नहीं है. 100 में से नंदिनी एक आप भी इस बात को समझो, और अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना. मुझे लगता है 100 में से 4-5 लोग ठीक होंगे.
अगर हमने एक भी ठीक किया तो भी हमने एक सोसाइटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। लोग कहते हैं कि एक से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपने मछली की कहानी सुनी होगी कि एक बंदा जो बाहर पड़ी मछलियां थे वो समुद्र में डाल रहा था, तो दूसरा बंदा कहता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितनी अंदर डालेगा। वो कहता है उससे उसी को फर्क पड़ेगा जो ठीक पानी में पहुंच जाएगी। True. लेकिन presently we see thousands of people are in recovery in India and we have made this association जो मैंने बताई है ना, ऑल इंडिया कम्युनिटी ऑफ पर्सन इन रिकवरी। पूरे हिंदुस्तान से ऐसे लोगों का एसोसिएशन समूह बनाया है, फेडरेशन बनाई है जो रिकवरी में है। एक मिनट के लिए फ्रीज हो गया था फिर से डॉक्टर भूषण का। जी, मैं कह रहा हूँ हमने एक एसोसिएशन बनाई है 2 साल पहले, दैट इज ऑल इंडिया कम्युनिटी ऑफ पीपल इन रिकवरी। जो लोग ठीक हुए हैं वो हजारों लोग हैं हिंदुस्तान में, हजारों। और कभी वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि ये वही लोग हैं जो नशा करते थे, जिनको हम गली में नहीं घुसने देते थे, जिनको हम नेगेटिव वो कहते थे, जिनको गाली देते थे, जिनको देखना नहीं चाहते थे, घर से निकाल देते थे। ये वही लोग हैं। रिकवरी पॉसिबल है। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको SAM कहते हैं, शामशा। उसने कहा है, दे हैव गिवन 3 स्लोगन्स। प्रिवेंशन इज इफेक्टिव, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन, हाँ, प्रिवेंशन इज इफेक्टिव, ट्रीटमेंट वर्क्स एंड रिकवरी इज पॉसिबल। तो हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो रिकवरी के लिए है कि लोग ठीक हो सकते हैं। एंड जब भी मेरी इस तरीके से किसी वेबिनार में, सेमिनार में या फिजिकल मेरा सेशन होता है तो मैं उन लोगों को साथ लेके चलता हूँ। हमारे पास एक बच्चा है जो दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकवरी में है। 13 साल की उम्र में हमने उसको ठीक किया। 13 साल में आया था जब वो इलाज के लिए आया, और 5 साल से नशा कर रहा था। नाउ ही इज ए 22, 10 साल से वो रिकवरी में। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट इन रिकवरी इन दिल्ली। ओके, आई एम श्योर इन सब लोगों को देखेंगे लोग तो दे डेफिनेटली गेट सम होप और दे विल सीक आउट ट्रीटमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Is it cheaper or more expensive than other treatments? देखो, अदर ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है, मोडेलिटी जो है, जैसे ए का प्रोग्राम है उसमें तो एडमिशन करना ही नहीं है। उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ मीटिंग होती है, रोज करनी है आपने, और 1.5-2 घंटे का टाइम देना है। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ तो पेशेंट को 6 महीने से साल तक रहना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऑन द होल देखें हम, ऑन द होल देखें, नशेबाज को ठीक करना बहुत सस्ता है। इट्स मच मच चीपर देन द पीपल हु डू नॉट टेक ट्रीटमेंट। अगर हम मान के चलते हैं कि मान लो थेरेपेटिक कम्युनिटी में हम 1000 से 1 महीने का इलाज करते हैं तो पेशेंट को 6000 रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर ठीक हो जाता तो वो 6000 बहुत कम है। अगर हम सबको ना इलाज देने से इलाज देना बहुत सस्ता है, और ये ऑलरेडी रिसर्च है। दूसरा, इकोनॉमिक बर्डन नाम से WHO ने एक पहले से ही रिसर्च करी हुई है कि नशेबाजों का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो सोसाइटी पे कितना है। तो उसमें भी ये कहा गया है ट्रीटमेंट इज मच मच चीपर देन द पीपल, वी डू नॉट ट्रीट द पीपल हु टेक्स ड्रग। राइट, एग्जैक्टली। आई थिंक लोग वो एस्टिमेट नहीं कर पाते कि अपने एडिक्शन पर ही लोग कितना ज्यादा स्पेंड कर लेंगे, एंड देन आगे हेल्थ इश्यूज आएंगे, उस पर कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा।
So with this, I think that's it from my side. All the audience questions are also covered. So Akansha, you can take over from here. Thank you so much, Rajnandini. And thank you so much, Dr. Bhushan. The session, it was really an insightful session, and I'm sure हमारे community में जो भी patients है, जो भी addicts है, उनको ये session बहुत ज़्यादा help करेगी to get in all the details. And thank you so much once again. So before concluding the session, ending the session, can you share like in 2-3 lines कोई भी message as a psychiatrist for the patients? यस मैम आकांक्षा, एक तो जैसे अभी नंदिनी से बात हुई है कि इलाज बहुत सस्ता है, तो सब लोगों को इलाज करवाना है जो बीमार है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना। अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो वो सोसाइटी पे बहुत बड़ा बर्डन है, हमारे कंट्रीज पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो इलाज कराना बहुत सस्ता है और बहुत फायदेमंद भी है। दूसरा, जो लोग नशा नहीं करते वो बचे रहें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो लोग नशा नहीं करते, वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ परसेंटेज ही है जो नशा करता है, बाकी तो सारे बचे हुए हैं। तो अगर हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नशा बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है, हर तरीके की बर्बादी है, पर दिस इज मोर सीरियस देन कैंसर। It affects every aspect of human being, be it mental, be it physical, be it social, be it family, be it spiritual, be it legal. Everything will be destroyed and more serious than cancer. तो बचना बहुत अच्छी बात। Thank you so much, Dr. Bhushan. Thank you so much for the beautiful message. I'm sure people will definitely learn from this message. So I think it's time to conclude the webinar. And I would like to thank you again and Rajnandini for the great session. And thank you so much to all our audience also for the active participation. And we will be soon back with another webinar. Till then, please stay safe and have a great weekend. Thank you once again. Thank you, Nandini. Thank you, Aksha, and thank you, Welcome. Rehabpath, for giving me this opportunity. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you, Dr. Bhushan. Bye.